So, Dr. Dolly, shall we start the session? Yes, ma'am. Let us begin. Yeah, please. In the current era of standards-based education, student self-assessment stands alone in its promise of improved student motivation, engagement, and learning. Currently implemented, student self-assessment can promote intrinsic motivation, internally controlled effort, a mastery in goal orientation, and more meaningful learning. Its powerful impact on student performance in both classroom assessments and large-scale accountability assessments empowers students to guide their own learning and internalize the criteria for judging success. We define self-assessment and its importance in this session. We begin with a detailed, definition of self-assessment, and we can review it also. So, good afternoon, everyone. I am Dr. Dolly Roy Chaudhary, and I extend a very warm welcome on behalf of IMRT Business School to our chairman, Sir, Shri Deshraj Bansalji, our secretary, Sir, Shri Sanjeev Bansalji, our CEO, Ma'am, Rachna Govil, Ma'am, our respected senior faculty members who have joined us today, our special guest, Miss Priya Vrinda, and our dear students. It gives me immense pride to welcome our speaker for this module. Ma'am is currently working as a leading performance psychologist with Adani Sportsline and is placed at Bangalore. She has conducted several orientation and training programs with different organizations. She is a certified performance psychologist, MA PGD Counseling Psychology. Ma'am, I thank you for joining us and hope that our students can gain valuable and life-changing insights from this session. Over to you, ma'am. Thank you so much, Dolly, ma'am. That was a very wonderful and a sweet introduction that you gave. Thank you, ma'am. And good afternoon, everyone. I'm really excited to be here because today I'll be talking on the very basic and the very foundation of psychology and any performance enhancement, that is self-analysis. So I will just present my screen. Is it visible? Yes. Okay, all right. So, can you see this, ma'am? Yeah, we can see. Okay, all right. So, as our today's topic is self-analysis and future progress. Okay, so when we talk about self-analysis, what do we actually mean by it? And before that, this will be the content for today's presentation. First, we'll talk about what self-analysis is. And then how we will cover it up is through, there was a very leading and a famous psychologist called Abraham Maslow, and he had given a needs hierarchy. तो उसके थ्रू हम समझेंगे कि डिफरेंट ह्यूमन बींग्स की क्या नीड्स रहती हैं और कैसे हम एक नीड से दूसरे नीड्स को ओवरकम करके हम अपने ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग पे अचीव करते हैं. एंड देन हम अपने आप को जो सेल्फ एनालिसिस का प्रोसेस है वो हम जोहारी विंडो एंड स्वॉट एनालिसिस के थ्रू वी विल वर्क ऑन इट. एंड लास्टली आई विल रैप इट अप विद 3 of my favorite and I think most effective mind kit tools for performance enhancement. With that, when we talk about self-analysis, it basically is to have a very clear perception of your personality. And that includes हमारी क्या strength है, हमारी weaknesses क्या हैं, what is our thought process, हमारा belief system क्या है, what are our needs, motives, motivation, and emotions. And like I always term emotion as it's an energy in motion. So basically, the better we know ourselves very deeply, उतना ही ज्यादा हम समझ सकते हैं कि what is it that I truly want in my life and what is the way that I have to proceed further. So with that, when we talk about Abraham Maslow, this was a triangular theory जो उन्होंने दी थी. तो उन्होंने बोला था हर एक इंसान बिल्कुल जो नीचे वाला लेवल होता है वो बेसिक लेवल होता है हमारी नीड्स का, फिजियोलॉजिकल नीड्स. तो जैसे हम एक अपने लेवल को हम क्रॉस करते रहते हैं तो हम नेक्स्ट
फर्स्ट लेवल पे जाते हैं. अगर कहीं किसी भी लेवल पे हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं, तो हम उस लेवल पे स्टक हो जाते हैं. और जब तक हमारे सारे लेवल्स की नीड अगर मीट अप नहीं हो रही है, तो हम अपने टॉप ऑप्टिमम फंक्शनिंग पे नहीं पहुंच पाएंगे. And the reason why it is very important for us to know the various type of needs that we have is because what are we actually, why is it important for us to know ourselves, why is it important for us to analyze ourselves, ताकि हम अपने आप का 100% potential को हम reach कर पाएं. And that we can only reach when our all needs are in a way fulfilled. So when we talk about the basic level, that is our physiological needs, उसमें आता है हमारा nutrition, water, air, sleep, very basic things that are required for human existence and functioning. तो जब हमारी जो बेसिक नीड्स है, जब हमें ठीक से खाना मिल रहा है, 3 टाइम की रोटी जैसे बोली जाती है, जब हमारे पास enough, we have sufficient amount of sleep, when we have decent clothes to wear, when we have water, so that we're able to function properly throughout the day. उसके बाद एक इंसान अपनी सेफ्टी की नीड्स पे आता है. आपकी सेफ्टी की नीड्स में आता है स्टेबिलिटी लेवल है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सेफ है. Then we have a house. It's only when हमारी basic needs fulfill होती हैं, then a person thinks about investing money somewhere or buying a house for themselves. तो ये हमारी safety की needs है. उसके बाद जब हमारी ये needs fulfill हो जाती हैं, then we go towards social need. That is the need for belongingness. That is giving and taking, receiving affections. हमारा intimacy level है, friendships है, tenderness है, love and belongingness. So this is our third level. इसके ऊपर जब हम जाते हैं, हमारी एस्टीम की नीड आती है, जहां पे हम पॉजिटिव सेल्फ एवेल्युएशन हमारी है, डिग्निटी, अचीवमेंट, मास्टरी, इंडिपेंडेंस, हमारी रेपुटेशन एंड प्रेस्टीज. इट्स ओनली व्हेन जो नीचे की 3 नीड्स होती हैं, तब हम वी गो अबाउट लुकिंग फॉर नेम, वी वांट टू हैव वी वांट मोर फेम, वी वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड. अगर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अब अगर हमारी कोई क्लास में हम हैं, तो वी वांट टू डू वेल. तो जो रिकॉग्निशन, पॉजिटिव इवैल्यूएशन की जो नीड्स है, वो हमारे 4th लेवल पे आती है. फिर अब इन सब को क्रॉस करके जो हमारा टॉप लेवल है, that is basically when we've achieved everything, right? What are we still working for? What are we still looking for? That is self-fulfillment, growth, morality, exploration, transcendence. That is basically what we talk about, the entire purpose of life. तो अब क्या है, why is it important for us to know these needs, is because a lot of time when we don't know ourselves, when we are not in very much sync with our purpose in life, तो हम एक नीड से दूसरी नीड्स पे जाते रहते हैं. बट देन जो एस्टीम की नीड्स है, हमारा जो 4th है, उस पे जाके a lot of time people get stuck because what they feel is, I have achieved everything and I'm still not happy, and I've achieved everything but I'm still not fulfilled. And that is where we see a lot of celebrities, a lot of top level corporate people. Why do they get depressed? Why do they feel so lonely? Is because somewhere throughout the process we were not in very much sync with ourselves, and that is where the role of self awareness comes in. तो जैसे मैस्लो ने बोला था, living as per our fullest potential and becoming who we really are is what is the ultimate aim of any human being, जो हमें उस pyramid के बिल्कुल टॉप पे मिलता है. That is what we call self-actualization. तो उसके लिए I am sure everybody knows who Jim Carrey is. He's a very famous US actor. तो उन्होंने ये quote बोला था, I hope everybody could get rich and famous and will have everything they ever dreamt of, so they will know that it's not the answer. तो जब हम बात करते हैं इस कोट की, we see that somewhere he has achieved all these 4 needs, but कहीं ना कहीं जब हम self actualization वाले लेवल पे आते हैं, we're not able to achieve it. That is where we start questioning our entire existence, our entire purpose. And वही काम अगर हम स्टार्टिंग में right now we students, तो अगर इसी टाइम पे हम अपना सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा लें, हम अपनी सेल्फ एनालिसिस पे काम करें, हम प्रॉपरली उस प्रोसेस को समझें, तो we will be very much in sync with our true self. And then what will happen, जैसे जैसे हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाते हैं, we become more of an whole of ourselves. So with that, what are we really after? Like whenever I start working with any athlete, national athlete, international athlete, or any client of mine, be it a corporate, be it a coach, anybody, I always start off with, what is it that you truly are seeking in your life? What is it that you truly want? तो उस चीज में क्या होता है, lot of people have an answer that has been told by their parents, that has been told by their
teachers, I want you to do this, but it's not very much in sync with ourselves. And in order to lead a very fulfilled life, it is very important for us to know what is it that I really want for myself and for my life. With that, we come with my purpose and my why. So basically, हमारा जो purpose होता है, a purpose of my life as a combination of my values, my motivation, and why I've chosen to the work I have chosen to do. So, like John Maxwell said, find your why and you will find your way, you know. So now what do we mean by our why? तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे what is the reason that I'm doing anything? This is the very base of your self-awareness. What is why? The why is the purpose, cause, or belief that inspires you. Now, whatever stream that you have, just ask yourself, why is it that you're doing it? If you're a BBA student, if you're an MBA student, if you're a BEd student, why is it that you're doing this course? Just because you probably took up this subjects in 12th, and that's why, because you thought that और कुछ करने को नहीं है, ये इसलिए हम कर रहे हैं. Yeah, we are genuinely very motivated, or I feel like this is the purpose that I'm here for. So it's very important for us to actually ask ourselves, why is it that I'm doing this? फिर एक साइमन सिनिक का गोल्डन सर्कल है जिसमें वो बात करते हैं, ही एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाई. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इज व्हाट, सबको पता है क्या करना है, ठीक है. जैसे क्या करना है, प्रोबेबली इफ आई एम डूइंग बीबीए एमबीए, तो मैं ये कर रही हूँ, दैट इज माय व्हाट, ठीक है. कैसे करना है, आई नीड टू गेट अ 3 years डिग्री, देन आई नीड टू डू अ 2 years स्पेशलाइजेशन, फिर उसके बाद मुझे जॉब चाहिए, ये भी पता है, ठीक है. बट व्हाई इज इट दैट वी आर डूइंग दिस? दिस इज समथिंग दैट अगर हम अपना वाई को आंसर कर देते हैं तो हम बाकी के जो 93% लोग हैं, बिकॉज that is what it is said, that 93% जो लोग हैं, they are not aware about their why are they doing whatever they're doing in their life, so what is their true purpose? तो वो जो सिर्फ 7% लोग हैं जो बहुत ज्यादा अपने पर्पस से अट्यून्ड हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड आर वाई. यूजुअली लोग क्या करते हैं, व्हाट समझते हैं, फिर हाउ समझते हैं, फिर वाई पे जाते हैं, और जब तक वाई पे जाते हैं कभी कभी हम 60-70 years के भी हो जाते हैं. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अस टू गो फ्रॉम द इनसाइड आउट. Inside it, why is it that I'm doing it? Like, what is it that I really want to do? फिर उसको आगे फॉलो करेगा. तो इसके साथ साथ अगर हम सेल्फ एनालिसिस की बात कर लें, तो अभी इफ आई जस्ट आस्क यू, किसी भी एक इंसान का ऑप्टिमल पोटेंशियल 10 on 10 रहता है. दैट मीन्स इफ यू आर फंक्शनिंग 10 on 10, दैट मीन्स यू आर वेरी कंटेंट इन योर लाइफ. आप बहुत प्राउड हैं, आप बहुत खुश हैं, आप जहां पे भी हैं, ठीक है. तो वो अगर 10 on 10 लेवल ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग है, तो अभी आपको क्या लगता है आप कहाँ पे हैं? Just give yourself a score on the scale of 1 to 10. Where do you think you are? It could be a 3, it could be a 5, it could be a 6. 10 on 10 is, this is my maximum, and this is like my dream, like this is where I want to be. अगर वो आपके दिमाग में एक विजन है, तो अभी आप currently उसको लेके कहाँ पे हैं? Give yourself a score for it, okay? Just keep that in your mind. All right? Now, इस स्कोर को हम बाद में रिव्यू करेंगे. लेट अस गेट ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ सेल्फ एनालिसिस, दैट इज अ जोहारी विंडो. व्हेन वी टॉक अबाउट जोहारी विंडो, यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं. अगर आप सबसे पहला बॉक्स देखेंगे जो आपका ओपन सेल्फ का है, तो ओपन सेल्फ होता है जिसमें इंफॉर्मेशन जो आपके बारे में है वो आपको और बाकी सबको पता है, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी. बेसिकली जोहारी विंडो 2 साइकोलॉजिस्ट ने फॉर्मुलेट किया था. उन्होंने बात करी थी कि हर व्यक्ति के 4 पर्सोनाज रहते हैं, ठीक है. तो 4 उनके एक साइड्स हैं. तो अब उसमें क्या है, सबसे पहला साइड है जो उनका ओपन है, जो सब उनके बारे में जानते हैं. तो मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है. तो दिस इज एक्चुअली अ टूल किट. अगर आपके पास पेन एंड पेंसिल पेपर है, आप उस पर प्लीज इस चीज को लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू टू बिकम मोर एंड मोर सेल्फ अवेयर. दीज आर द टॉप 2 स्किल्स जो आप अपने सेल्फ एनालिसिस में यूज करते हैं. तो उसके साथ क्या है, व्हाट आर दोस क्वालिटीज अबाउट यू जो आपको लगता है कि एवरीबडी नोज, ठीक है, एंड जो आपको पता है. फिर आता है हमारा हिडन सेल्फ. हिडन सेल्फ है जो ब्लू वाला ये जो बॉक्स है, जिसमें है इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू नो बट अदर्स डोंट नो. तो वी ऑल हैव दिस साइड, जो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो हम दूसरे लोगों से छुपा के रखते हैं बिकॉज वी नॉट वेरी कंफर्टेबल शेयरिंग इट. तो ऐसी वो क्या चीजें हैं, वो हमारी हिडन सेल्फ में आती है. फिर हमारा आता है ब्लाइंड सेल्फ, जिसमें है इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू डोंट नो बट अदर्स डू नो.
अब क्या होता है, हम हमेशा एक अपने परसेप्शन में रहते हैं, दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ। बट लोगों को एक बहुत अच्छे से काफी बार एक थर्ड पर्सपेक्टिव, एक बर्ड आई व्यू दिखता है हमारा, ठीक है। तो वो हमारा ब्लाइंड सेल्फ होता है। और एक आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारा अननोन सेल्फ है, जिसको हम कहते हैं, जिसमें होता है इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट नाइदर अदर्स नो नॉर यू नो, बट ये वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और 90% of our personality is somewhere in the unknown self because we are not aware about it. अब क्या है, हमें अपना the purpose of showing you this Johari window is हमें we have to know ourselves, we have to work on ourselves in order to open up. हमें अपना maximum क्या रखना है, साइज हमारा ओपन सेल्फ सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बाद हमारा हिडन सेल्फ, because it is very important for us to know all our talents, all our insecurities on base. because क्या होता है, अगर कभी कभी मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, मेरी क्या वीकनेसेस है, तो मैं ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन कैसे कर सकती हूँ। तो इन ऑर्डर टू एक्चुअली परफॉर्म किसी भी फील्ड में अपने टॉप लेवल में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो माई सेल्फ इनसाइड आउट। तो दिस इज द मॉडल दैट एक्चुअली हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट काइंड्स जो हमारे होते हैं, हमारे पर्सनालिटीज के, और उस पर हम आगे काम कैसे कर सकते हैं। तो सब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल संगीता है एक, ठीक है। तो थिंग्स जो उनको भी पता है और बाकी सबको भी पता है, प्रोबेबली इट कुड बी कि वो बहुत अडेप्टेबल हैं, वो बोल्ड हैं, काम है, केयरिंग है, क्लेवर हैं, कॉन्फिडेंट हैं। सो दीज आर द ट्रेट्स दैट शी नोज एंड एवरीबडी एल्स नोज अबाउट हर। थिंग्स दैट अदर डोंट नो अबाउट हर, that she's probably very self-conscious, वो shy है, वो patient है, वो proud है, nervous है, for somebody it could be different for everybody. And then what are the things that I don't know but others know about me? So these are some examples of it, and things that even I don't know and others also don't know. तो ये हम कैसे इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं? These are some ways. तो हमारा जो पहला tangent है, that is our open self. How can we work on it? That is by understanding, just genuinely sitting with ourselves for about 10 to 15 minutes and working through these questions. The first is, what are your three main interests? What are the three things that gets you really excited in your life? Write those down. Then, what things are you most comfortable doing? What are those things? These are the questions that actually dwell you to understand yourself better. Then describe yourself in 3 words and give yourself a reason for it. If you come up with creative, why is it that you think that you're creative? If it's kind, why do you think so? Then, what are your 3 biggest strengths? And then, what are your 3 biggest weaknesses? So this is basically a way of knowing yourself a little better. Then when we come about the second, our blind side, this is describe, take 3 people in your life, जो भी आपके 3 लोग जो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, and somebody who knows you inside out as well as who can tell you certain truth. तो इफेक्टिव फीडबैक लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें हमारी सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए, बिकॉज नो मैटर मैं कितना ज्यादा अपने आप पे काम कर पाऊं, आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड and the whole picture just by working on myself. I need to seek help from people who I sit with 24/7, who I interact with, mostly. तो उन लोगों से, ऐसे कोई भी आपके जो 3 लोग हैं जो आपसे सबसे ज्यादा क्लोज हैं, उनसे ये पूछिए कि describe me in 3 words and tell them, okay, I will not take any offense, just be very very honest with me. Okay, then ask them, what are my strengths in your opinion? What are my weaknesses in your opinion? What things do you like about me and what things you don't like about me? तो क्या होता है जब हम इस प्रोसेस से ये चीजें एक लिस्ट बनाते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर मॉड्यूल हो जाता है कि व्हाट इज इट आर एक्चुअली आर स्ट्रेंथ्स। तो इवन जब हम बड़ी बड़ी टीम्स के साथ हम उनकी टीम बिल्डिंग, टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उसमें एक जो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराते हैं वो है कि आपस में सब एथलीट्स को, सब लोगों को बिठा के हम उनसे डिस्कस करवाते हैं कि व्हाट डू यू थिंक इज एवरीबडी स्ट्रेंथ हियर। तो वो एक इंसान बाकी के 10 मेंबर्स की स्ट्रेंथ बोलते हैं, फिर वो वीकनेसेस बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अगर किसी से फीडबैक लेंगे ही नहीं, तो क्या पता उनके दिमाग में जो हमारी एक इमेज है हमें पता ही ना चले। तो इससे सबसे वो जो आपके 3 मोस्ट कॉन्फिडेंट आपके लोग हैं, उनसे आप जितना इफेक्टिव फीडबैक लोगे, आपको एक बेटर पिक्चर मिलेगी अपने बारे में। तो दैट विल रियली हेल्प यू टू बिल्ड अप योर सेल्फ अवेयरनेस।
देन आप अपने हिडन एरिया को कैसे बिल्ड कर सकते हो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू थिंक इज योर बिगेस्ट इनसिक्योरिटी. वी ऑल हैव आवर इनसिक्योरिटीज, दैट्स हाउ वी आर ह्यूमंस, ओके. बट वो इनसिक्योरिटी काइंड ऑफ डिक्टेट्स अस टिल द टाइम वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट. एक बार जब हम अपने फियर्स से, अपने इनसिक्योरिटीज से जब हम फेस ऑफ कर लेते हैं, जब हम अवेयरनेस अपनी बढ़ा लेते हैं, then they don't have as much power over us as they do when we are ignorant about it. Then the second thing is, what is one of your secrets that you don't want to share with anybody? Just like kabhi kabhi kya hota hai, certain things they keep haunting us again and again. But when we get them on surface, that is when we feel more relieved. So this is something that will help you to build up your hidden area. Then it is, what is your biggest fear? So this is how we work on our hidden areas, things that I know about myself but others don't. And then comes our last part, that is our unknown self, जो हमारा subconscious part है. उसके लिए है, we should literally dive into the deep question of how happy I am in my life, genuinely. Not on those days where everything is gone according to me, but generally on a day-to-day basis, how fulfilled do I feel? And जो भी आप जो भी आपकी स्ट्रीम है, जो भी आप काम करते हैं, how much do you truly enjoy what you do? Then, do I have beliefs and behaviors that are learned and not truly mine? फिर, do I have a great skill or talent that I'm not aware of? तो इससे क्या हो रहा है, जो भी चीजें कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, हम उनको सरफेस पे लेके आ रहे हैं. फिर है, is my health as good as it can be? Or there is some things that I can work on, probably leading a more fulfilled and well life. फिर है, do I have thoughts and feelings that are holding me back? तो these are certain ways that हम अपने वो जो हमारा एक blind side है, हम उसको on surface ला सकते हैं. So this is how, with our own introspection and with the help of people who are around us, we can genuinely get a lot of our traits, a lot of our qualities on the board. फिर उसके साथ साथ आता है SWOT analysis. SWOT analysis बड़ी से बड़ी जो लीडिंग कंपनीज होती हैं, टीम्स होती हैं, वो अपना SWOT analysis करते रहते हैं टाइम टू टाइम, probably every 4 to 6 months. तो SWOT analysis क्या होता है? S stands for your strengths, W for your weakness, O for your opportunities, and T is for the threats. तो इस बेसिस पे अगर हम SWOT S देखें, तो आपने जो भी अपना, अभी हमने जोहारी विंडो से आपने जो भी अपनी क्वालिटीज आपको मिली, ठीक है, जो आपको सबने बताई फीडबैक के थ्रू, एंड जो आपको खुद अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करके आया, उस बेसिस पे आप देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं. राइट दोस स्ट्रेंथ्स डाउन. Probably it could be 10, it could be 15, 20, 30. Genuinely work on yourself. Give yourself time for this and start working on it. फिर अब जो उन्होंने आपकी वीकनेसेस बताई हैं, जो आपको अपनी वीकनेसेस लगी हैं, एवरीथिंग दैट हैज पुल्ड यू बैक फ्रॉम एक्सेलिंग टिल नाउ, तो उस वीकनेसेस को लिखिए, ठीक है. फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या क्रिएट होती हैं. अब फॉर एग्जाम्पल, दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू इन माय लाइफ, ठीक है. सो बेस्ड ऑन माय स्ट्रेंथ्स एंड माय वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज क्या है मेरे पास टू probably get a step closer to my goal. Then comes my threat. तो अब जो भी मेरे को पता है, दिस इज माई गोल, दिस इज माई विजन दैट आई वांट टू अचीव, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये वीकनेसेस हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं. तो इसके साथ साथ कुछ थ्रेट्स क्या क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये देखते हैं, किसी की अगर स्ट्रेंथ है, वो हार्ड वर्किंग है, वो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, दे आर गुड विद कंप्यूटर्स, उनकी कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड पीपल बहुत अच्छी है, वो बहुत एम्पैथेटिक हैं. अगर उनको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उसमें है कि उनके पास कोई HR एक्सपीरियंस नहीं है, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. You are afraid of what people talk about you, not having any experience in a big company. आप बिल्कुल एक फ्रेशर हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? चांसेस टू गेट इंटरनेशनल स्टडी टूर, चांसेस टू वर्क अब्रॉड, एक जॉब अपॉर्चुनिटी दैट आर बायलिंगुअल. ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसी बहुत और हो सकते हैं दैट वी हैव टू वर्क ऑन. फिर थ्रेट्स आता है. Are you aware about your competitors? What are the different kind of threat that can harm you? What are the weaknesses becoming your threat? तो उसमें क्या होता है, हम अपनी वीकनेसेस पे काम करते हैं, तो हमारे थ्रेट्स भी कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाते हैं. बट ये स्वॉट एनालिसिस का क्या एक हमारा मेन पर्पस क्या है, ये सारी जो भी हमारी क्वालिटीज हैं, हमारी जो भी वीकनेसेस है, उसको सरफेस पे लेके आएगा. देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू वर्क ऑन एवरी वीकनेस, फाइंडिंग अ वे आउट फॉर इट. बिकॉज जितना ज्यादा हम अपनी वीकनेसेस पे काम करते हैं, हमारे थ्रेट्स भी एलिमिनेट होने शुरू हो जाते हैं. विद दैट, सी
इसके साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट जो सॉफ्ट स्किल रहता है वो है हमारा टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट. सो नो मैटर व्हाट वी डू इन लाइफ, when you realize that your time on this world is limited, how you spend every second becomes a spiritual decision. See, जैसे हमने स्टार्ट में अपनी प्रेजेंटेशन की बात करी थी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, तो हमारे हम अपनी सारी नीड्स को इसलिए कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहे हैं. पहले बेसिक सेफ्टी नीड्स, फिर फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, फिर हमारी एस्टीम की नीड्स आती हैं. एक एक स्टेप पे हम ऊपर जाते हैं. तो हमारा मेन पर्पस क्या है? टू लीड अ वेरी फुलफिल्ड लाइफ. तो उसके साथ अगर हम देखें कि आप में और आपका अगर कोई आइडियल है लाइफ में, कुड बी एनीबडी, सम एक्स वाई जी, उस इंसान में और आप में सबसे एक चीज है जो कॉमन रहती है थ्रू आउट. दैट इज दैट पर्सन ऑल्सो एंड यू, बोथ ऑफ यू हैव 24 hours in the day. It is how well you work and how optimally you work in those 24 hours will determine the quality of your life. Having said that, अब सेल्फ एनालिसिस अगर हमने अपने जोहारी विंडो से वी हैव गेन्ड लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव, हमने इफेक्टिव फीडबैक लिया. सेकंड है हमने अपना स्वॉट एनालिसिस किया. उसके बाद सेकंड स्टेप, जो थर्ड स्टेप आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू जेन्युइनली नो व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू इन माय लाइफ. वंस आई एम रियली अवेयर, तो वो हमें बहुत क्लियर एक पिक्चर देगा हाउ क्लोज am I to the kind of ideal vision of myself. सो विद दैट, जो हमने टूल्स के बारे में बात करी थी, जो हमारे सबसे ज्यादा इफेक्टिव टूल्स हैं हमारी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के, which is something that I stick by always. The first is mindfulness. When we talk about mindfulness is जो सेल्फ अवेयरनेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज हाउ प्रेजेंट आर वी. अब जो ये टाइमलाइन है, अगर आप ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की देख रहे हैं, तो ये एक टाइमलाइन है जो 24 घंटे हमारे साथ रहती है. ठीक है. अब हमारा जो दिमाग होता है, आप देखिए हर इंसान के पास हर दिन कम से कम ओवर 60,000 थॉट्स आते हैं, एवरी पर्सन. ठीक है. अब वो 60,000 थॉट्स आपके इस टाइमलाइन में कहाँ पे फॉल कर रहे हैं? क्या वो थॉट्स बहुत ज्यादा पास्ट के हैं? क्या वो थॉट्स बहुत ज्यादा फ्यूचर के हैं? अब हम क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत रेपिटेटिवली चलता रहता है, हम अपनी पुरानी मिस्टेक्स पे ड्वेल करते रहते हैं, या बहुत ज्यादा रेपिटेटिवली हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं. बट वी आर सेल्डमली लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो माइंडफुलनेस बेसिकली एक ज़ेन फिलॉसफी के बेसिस पे आधारित है, जिसमें ये चीज समझाई गई है और उसमें एक वे ऑफ लिविंग बताया गया है, दैट द ट्रू वे ऑफ लिविंग एन ऑप्टिमल लाइफ इज to be 100% involved in the present moment at all time without any judgment. जो हमारा ध्यान, जो हमारी एनर्जी सारी कॉन्स्टेंटली पास्ट और फ्यूचर्स की बैटल में रहती है, दोनों चीजें हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते हैं. द ओनली थिंग दैट वी कंट्रोल इज द प्रेजेंट मोमेंट. सो वी हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एज मच एंड एज मोर वी कैन. फिर इसके साथ आता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट और जो सॉफ्ट स्किल रहता है, वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. हाउ आर वी कम्युनिकेटिंग विद आवर सेल्फ? आपकी सेल्फ टॉक is actually the biggest game changer. Once you realize your strengths and weaknesses, जब आप अपने बारे में aware बनते हो, होते हो और ज्यादा, तो you will also start realizing that a lot of our weaknesses come from what we are constantly telling ourselves. ठीक है. कभी कभी क्या होता है, वो वीकनेसेस सोसाइटी हमें हमारे नर्चरिंग के टाइम, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स, टीचर्स बार बार जो भी चीज कभी ऐसे बोलते हैं, वो चीज क्या हमारी वीकनेस बन रही है? वरना हमारे दिमाग में कांस्टेंट एक डायलॉग रहता है. हर इंसान के पास दिन में एवरेज 60,000 थॉट्स आती हैं, जिसमें से जो आपकी 95% थॉट्स हैं वो कॉपी पेस्ट हो रही है कल से. तो हम कुछ नया क्रिएटिव, कुछ डिफरेंट सोचने के लिए, कुछ अपने आप को पुश करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को एक्सेल करने के लिए हम नहीं सोचते हैं. तो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट रोल आता है हमारी सेल्फ टॉक का. The way we talk to ourselves can actually weigh the way we function in our life. अब उसमें क्या होता है, 80% ऑफ जो हमारी 60,000 थॉट्स हैं वो नेगेटिव हैं, एवरी एवरेज ह्यूमन बीइंग की. तो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से अगर हमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है, अगर हमें एक्चुअली में लाइफ में एक्सेल करना है, तो वी हैव टू यूज आवर सेल्फ टॉक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो 100% हमारे कंट्रोल में है. बहुत इंटेंसिव जो सेल्फ अवेयरनेस पे रिसर्च करी है सोशल साइकोलॉजिस्ट ने, तो उन्होंने ये देखा कि जो ऐसे क्या ट्रेट्स हैं जो एक्सट्रीमली सेल्फ अवेयर लोग को
बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करता है। एंड जो लोग बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं, दे आर 97% टाइम्स एन अल्ट्रा अचीवर इन वट एवर दे डू इन देयर लाइफ। वो लाइफ में जो भी करते हैं वो बहुत ज्यादा उस पे टॉप लेवल फंक्शनिंग पे काम करते हैं। तो इन लोगों में जो सबसे एक डिफरेंट फैक्टर था वो था कि डिस्पाइट द सर्कमस्टांस एंड सिचुएशन इन लाइफ, उनकी जो सेल्फ टॉक थी, द वे दे वर टॉकिंग टू देमसेल्व्स वाज वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड हाउ इज दैट? दिस इज ऑल्सो अ स्किल दैट कैन बी लर्नड एंड दैट यू कैन वर्क ऑन। अब अगर आप बात करें कि आप किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर करते हैं, ठीक है, बिकॉज अब हमारे पास काफी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत बड़े कंपटीशन के लिए अगर वो ट्रेन कर रहे हैं, प्रोबेबली फॉर अबाउट 3-4 years वो एक ही कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जिस दिन वो कंपटीशन है या जिस दिन मान लो वो इंटरव्यू है हमारा, उस दिन हम अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं। हमारे जो 60,000 थॉट्स हैं उसमें से आप देख लो कि कितनी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। और जो हमने ये टाइमलाइन की बात करी है, तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? हमेशा फ्यूचर पे, कि अरे अगर इंटरव्यू का मेरे को पसंद नहीं आई, अगर उन्होंने मुझसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि जिसके बारे में मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है, या अगर हमारा पहला पास्ट पे चला जाएगा, अगर हमारे पहले कोई अच्छा इंटरव्यू नहीं हुआ है तो मैं कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचती रहूंगी। So with mindfulness and our self-talk, what we can do is we can actually just focus on the present moment. प्रेजेंट मोमेंट में क्या है? प्रेजेंट मोमेंट में ये है, जितना ज्यादा मैं रिलैक्स रहूंगी, जितना ज्यादा आज मैं अच्छे से आई प्रोबेबली टेक अ गुड स्लीप, अगर मुझे कुछ भी कल के लिए प्रिपेयर करना है, सो यही सब चीजें हैं जिन पे मुझे एक्चुअली फोकस करना है। सो हाउ शुड माई सेल्फ टॉक बी? मेरे को अपनी सेल्फ टॉक को प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आना है कि अभी मैं क्या क्या चीजों पे काम कर सकती हूँ। लेट मी राइट दोज थिंग्स डाउन एंड देन मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर इट। एंड देन अगेन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है? यू हैव टू बी योर बिगेस्ट cheerleader. दैट इज हाउ योर सेल्फ टॉक शुड बी। अगर हमें अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज करना है, उस पर काम करना है, तो द ओनली वे आउट इज, जो भी आपको कोई भी ऐसा शख्स है जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है, वो आपसे कैसे बात करता है, दैट इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, बिकॉज दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट एंड द रोल ऑफ सेल्फ टॉक इज। तो अगर हमें दूसरे इंसान से हमें वो जो जो मोटिवेशन मिलती है, अगर आप इमेजिन करिए आप 60,000 टॉक्स में, ठीक है, जो आपको थॉट्स आती हैं हर दिन, अगर आप अपने आप को वो सेम लेवल ऑफ कन्विक्शन और मोटिवेशन दोगे, then who can actually stop you in your life? Nothing, right? So self-talk is the biggest game changer. With that, जो हमारी लास्ट स्किल के बारे में हम जो बात करेंगे वो है कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज एक सर्कल, आप अगर इफ यू हैव अ पेन एंड अ पेपर, जस्ट ड्रॉ अ सर्कल, और जो सर्कल के अंदर है वो है थिंग्स दैट यू कंट्रोल एट ऑल टाइम्स इन योर लाइफ, और जो भी सर्कल के बाहर है आर द थिंग्स दैट आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। सो नाउ एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, व्हाट ऑल इज इन योर कंट्रोल? बहुत बार क्या होता है, जो हमारे बार बार रेपिटेटिव थॉट्स आती हैं, जो हमें बार बार हमारी वीकनेसेस का जो रीजन बनता है, वो है जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, या जो लोग हमारे साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, उनका क्या एटीट्यूड है हमारे लिए। सो ये सब चीजें लोगों को बहुत ज्यादा बॉदर करती है। थिंकिंग अबाउट द पास्ट अलॉट, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, लोगों की परसेप्शन क्या है मेरे बारे में, एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, मेरे आसपास की चीजें क्या चल रही हैं। बट अगर आप देखा जाए, आप अपनी 60,000 थॉट्स में से अगर आप 50,000 थॉट्स उन चीजों पे लगा रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप हमेशा बहुत ज्यादा नेगेटिव महसूस करोगे, तो फिर क्या होगा? अगर आप अपना स्वॉट एनालिसिस करोगे तो आपको स्ट्रेंथ्स अपनी बहुत कम मिलेंगी, आपको अपनी वीकनेसेस और आपको अपने थ्रेट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा आपका एनर्जी और टाइम कहाँ लग रहा है? आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हो जो आपके कंट्रोल से 100% बाहर है। अब देखिए, जो ये सर्कल है, जो भी ये पर्पल एरिया है, ये सब मेरे 0% कंट्रोल में है, 0। तो इस पे अगर मैं 24 घंटे में से 10 घंटे लगा लूं, 14 घंटे लगा लूं, वो सब चीजें मेरे कंट्रोल के बिल्कुल बाहर है। जब कोविड स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूज देख रहे थे कि कितनी बुरी हालत है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है, और इससे क्या हो रहा था, बहुत लोगों को एंग्जाइटी हो रही थी, पैल्पिटेशन हो रहा था, पैनिक अटैक्स आ रहे थे। वाई? बिकॉज जब भी हमारा ध्यान, हमारे इमोशंस, थॉट्स उन चीजों पे जाएगा जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो कंट्रोल के बाहर होने का मतलब क्या है? वो हमारे ब्रेन में एक ऐसा मोड एक्टिवेट करेगा जो फाइट और फ्लाइट होता है, दैट मीन्स भागो या लड़ो, और हम दोनों चीजें नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, हम बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन ऑप्टिमली। तो
अगर हमें पीक परफॉर्मर बनना है, अगर हमें अपनी लाइफ में एक्सेल करना है, तो हमें एक जो चैंपियन ट्रेट होता है, दैट इज जस्ट फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट आर अंडर माई कंट्रोल। तो आपके कंट्रोल में एट एवरी सर्कमस्टांस हमेशा क्या चीजें रहती हैं? आपका माइंडसेट हमेशा आपके कंट्रोल में है, आपकी सेल्फ टॉक 24/7 आपके कंट्रोल में है, वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ इज इन योर कंट्रोल, हाउ यू बिहेव, your actions, your reactions, these are the things that are 24/7 in your control. How somebody is behaving with me is not in my control, 0%, but how I react to it, and if I'm giving energy and my time to it, that is 100% in my control. For example, मान लो कि कोई बहुत पैंडेमिक चल रही है, जैसे कोविड, ठीक है, तो दो लोग हैं घर पे, एक इंसान बार 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 न्यूज पढ़ रहा है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो उनका ध्यान बार बार, उनके थॉट प्रोसेस कहाँ जा रहा है, वो कहाँ अटेंशन दे रहे हैं, थिंग्स दैट आर आउट ऑफ देयर कंट्रोल, ठीक है। वहीं पे जो दूसरा इंसान है, वो सिर्फ वो सोच रहा है कि उनके कंट्रोल में क्या है, उनके कंट्रोल में क्या है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, अगर बाई चांस बाहर जाना है तो मास्क पहन के जाना है, अपने आप को सैनिटाइज करना है। तो ये इंसान बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, तो ये अपनी जो भी टाइम और एनर्जी है ये उन चीजों पे लगा रहा है जो उनके कंट्रोल में है। और आप देखेंगे कि ये कभी भी पैनिक नहीं हो रहा है, बिकॉज फोकस कहाँ पे है? जो चीजें हमारे कंट्रोल में है। अब वहीं पे अगर हमें एक बहुत बड़े इंटरव्यू के लिए अपियर होना है, ठीक है, या मेरा एग्जाम है, अगर मैं बार बार सिर्फ ये सोचूं कि मुझे ये जॉब हर हालत में चाहिए, मुझे ये जॉब हर हालत में चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को आउटकम का प्रेशर डाल रही हूँ। तो एज एज अ ऑप्टिमल, एज अ पीक परफॉर्मर, मुझे क्या करना है? मुझे उन चीजों पे फोकस करना है हमेशा जो मेरे कंट्रोल में। मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करूं और मैं वहां जाके अपना 100% डिलीवर करूं, राइट? दीज आर द ओनली टू थिंग्स दैट आर इन माय कंट्रोल, दैट आई लुक कॉन्फिडेंट, दैट आई फील कॉन्फिडेंट, दैट आई ड्रेस अप वेल, एंड वट एवर दे आस्क मी आई गिव माई बेस्ट आंसर्स। उस बेसिस पे अगर मुझे सेलेक्ट किया जाता है, अमेजिंग, एंड अगर 1% मुझे सेलेक्ट नहीं किया जाता है, then I will learn from these things and the next time I will deliver an even better performance. तो इस बेसिस पे क्या होता है कि मैं अपने आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ। अगर अब हम एक लेटेस्ट जो हमारे कंट्री के सेंसेशन है उनके एग्जाम्पल के थ्रू ये लास्ट जो हमारा कंट्रोलेबल वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। वी टॉक अबाउट नीरज चोपड़ा। अगर आप उनका कोई भी ओलंपिक्स से पहले वाला और ओलंपिक्स के बाद का इंटरव्यू उठा के देखेंगे तो मीडिया हमेशा प्रेशर डालती है, ठीक है, नॉन इंटेंशनली। तो उसमें क्या पूछ रहे थे कि आप इंडिया के लिए मेडल लेके आएंगे। पहले तो गोल्ड की इतनी बात नहीं थी कि आप इंडिया के लिए मेडल लेके आएंगे, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो ये क्या है? ये जो सारी चीजें हैं ये आपके पर्पल एरिया के, दैट मीन्स थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल। बट वहीं पे कोई और एथलीट होता, बिकॉज लॉट ऑफ एथलीट्स दैट वी वर्क विद वो ये बहुत बार कन्फेस करते हैं कि जब मीडिया ऐसे क्वेश्चंस पूछती है कंपटीशन से पहले तो उनका दिमाग बिल्कुल प्रेशराइज हो जाता है, बिकॉज वो सोचने लग जाते हैं कि अब तो जीतना ही जीतना है, बिकॉज लोग बोल रहे हैं, मेरे बारे में ये लिखा जा रहा है, वो लिखा जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है? तो ऐसे लोग, क्योंकि उनका अगर फोकस बाहर चीजों पे रहा जो उनके कंट्रोल में नहीं है, दे विल वोंट बी एबल टू डिलीवर, दे विल गेट प्रेशराइज, वो अपने आप को डाउट करने लग जाएंगे। वहीं पे एक चैंपियंस माइंडसेट क्या बोलता है कि मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में सिर्फ मेरा 100% डिलीवर करना है, कि मैं कितने अच्छे से अपना थॉट प्रोसेस रख रही हूँ, मैं कितने अच्छे से रिएक्ट कर रही हूँ, मैं कितने अच्छे से मेहनत कर रही हूँ। दैट इज ऑल इन माई कंट्रोल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर मैं अपना 100% डिलीवर करके इफ आई गेट द जॉब, इफ आई गेट द मेडल, दैट्स ग्रेट। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम वी विल कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर। तो ये एक रेजिलियंस फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट हैपेंस इज द मोर सेल्फ अवेयर यू बिकम, जितना ज्यादा आप अपने आप को एनालाइज करते हैं अच्छे से, जब आप जितना ज्यादा अपने सेल्फ अवेयरनेस पे काम करेंगे, आपको ये भी समझ आएगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इन माय कंट्रोल एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नॉट इन माय कंट्रोल। सो आफ्टर today's presentation I would just urge you, अगर आपको कोई टॉप 3 चीजें लेके जानी है तो दैट इज फर्स्टली sit with yourself and start asking yourself the question that we discussed in Johari window, ठीक है? आप अपने आप से literally dwell on it, that what are the different phases, what are my different type of personalities, then pick out 3 people who are closest to you and ask them for very effective and very honest feedback. जब आपके पास वो हो जाए, if it takes you 2 days 3 days,
Then do a SWOT analysis for yourself. What is it that I truly want in my life? And on the basis of that, मेरी अभी strengths क्या हैं, मेरी weaknesses क्या हैं, क्या उस चीज को achieve करने के लिए मेरी opportunities हैं, क्या उस चीज को achieve करने के लिए मेरी threat है. On the basis of that, फिर एक plan of action बनाइए कि how I can work on eliminating my threats and my weaknesses. फिर जो 3 चीजें हैं, ये जो 3 strategies हैं जो हमारी peak performance के लिए हमें हमेशा help करेंगी, that is आज से if you can be more and more mindful, that means being 100% present in the current moment, irrespective of what is happening. And then the second is working on your self-talk. Make your self-talk the most powerful thing about you. And the last would be just focusing on the things that you control. And with that, I will wrap it up. Thank you so much. Thank you. Thank you, Ms. Priyavinda. Thank you, ma'am. Can I request the students to project their problems or their issues? And they should come out boldly. डॉक्टर डॉली, आपके स्टूडेंट्स कुछ पूछना चाहे अगर आप उनको बोलें तो. Yes, anyone has any questions? वैसे तो मैम मतलब the session was so informative, but I'm sure that they have received all the insights. Anyone with questions? Kindly unmute yourself and ask. चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ. There is lot of pressure from the parents and the parents compare their child with the other students. So how do I cope up as a student? Ma'am, see, this is something that is gonna happening and every time, right? And as a student, if my parents are constantly comparing me with others, right, I can just understand and I take it as a very effective feedback that they're giving me. And जैसे जो हमने जोहारी विंडो का एक aspect की बात करी थी, that this is a part of me that probably they're giving me a feedback about. तो जो भी अगर वो बार बार मुझे कंपेयर कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मेरी वीकनेसेस के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, अब अगर हम सर्कल ऑफ कंट्रोलेबल्स की बात करें तो पेरेंट्स का बिहेवियर कहीं ना कहीं उस पार्ट में फॉल करता है जो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है. तो अब मैं इस चीज को किस वे में पॉजिटिवली और बहुत इफेक्टिवली ले सकती हूँ कि ठीक है, एज अ पेरेंट उनकी इंटेंशन मेरे लिए बुरी नहीं है, राइट? तो उसमें अब व्हाट इज इट दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कंपेयरिंग मी विद द अदर किड्स. ओके, अगर ये 2 या 3 चीजें हैं, how can I make myself better in these things? And probably I can sit down with my parent and actually have a very very strong one-on-one conversation of how do you feel that I can improve in these particular qualities, because I am genuinely willing to learn. तो उससे क्या होगा, even the parents will feel like कि yes, my son, my daughter is willing to learn. तो वो क्या होगा ना, that will also tell them, put them in a frame of mind that मेरे को सिर्फ complain नहीं करना है, I have to come up with certain tricks and strategies with them. So I can sit down with my parent and work on the things that they constantly compare me with, and then formulate a way out. How can I get myself to be better? तो उसमें क्या होता है, 2 टाइप के माइंडसेट होते हैं. एक होता है फिक्स्ड, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट. फिक्स माइंडसेट होता है कि मेरे को कोई भी फीडबैक दे मैं बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो जाती हूँ बिकॉज इट जस्ट टारगेट्स माय ईगो. एक होता है जो बहुत ज्यादा पीक परफॉर्मर्स के लिए पाया गया है, जिनमें जो है ग्रोथ माइंडसेट. तो कोई भी मुझे कोई भी फीडबैक दे रहा है, मैं उसको पर्सनली नहीं ले रही हूँ. आई एम जस्ट सीइंग कि हाउ कैन आई एक्चुअली यूज इट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ टूडे. तो इफ दैट फीडबैक इज कमिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई विल take it in the best stride and just work with them on becoming a better version of myself, rather than feeling that my ego is getting tarnished. I think some students want to ask. Even I have a question, ma'am. That like we are so busy, meeting our physiological needs that we don't get time for our self-actualization needs. So, ma'am, like how we should go about that? Like what we can do to find time for meeting these higher needs?
See, I think I mentioned a quote there, right? When you realize that your time in the world is limited, every minute, every second that you spend, you will realize that it is a spiritual, decision that you will make. So, kahin na kahin, when we talk about it, we are very busy, trust me. And, but people who are actually top there in the world circuit, right? And if they are excelling, I will just give you an example about Ratan Tata, okay? He is one of the most prominent faces in India. And he is so busy because Tata Industries इतनी ज़्यादा multi functional है. तो उनके जो भी signatures होते हैं ना, वो कभी भी अपने टेबल पे बैठ के वो signatures नहीं करते हैं because he does not have time. अगर वो टेबल पे बैठ के एक एक फाइल डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे तो उनका बहुत टाइम लग जाएगा. बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसपे उनको सिग्नेचर करने होते हैं. तो उन्होंने अपने रेस्ट रूम के पास एक ऐसा टेबल रखा हुआ है. वो जब भी ब्रेक लेते हैं रेस्ट रूम जाने के लिए, वो वहां पे 3 से 4 मिनट लगा के वो साइन करते हैं. ही गेट्स फ्रेश, ही टेक्स दैट ब्रेक. और उसके अलावा क्या होता है कि वी ऑल हैव 24 आवर्स, ओके, इवन इफ वी आर स्लीपिंग फॉर आवर बेस्ट क्वालिटी स्लीप फॉर अबाउट 6 to 8 hours, वी आर लेफ्ट विद अदर आवर्स. आप कितनी देर दिन में काम करते हैं? इफ यू एक्चुअली जस्ट टेक 24 hours और आप अपने आप को ऐसे शेड्यूल करके देखें कि वेयर आर यू, हाउ मच टाइम आर यू एक्चुअली स्पेंडिंग ऑन ए फिजियोलॉजिकल नीड्स. इवन इफ इट्स 10 hours, राइट? आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपकी सेल्फ अवेयरनेस को, फॉर स्टार्टर्स इट डज नॉट नीड मोर देन 20 minutes. Just start with the habit of dwelling into yourself, working on yourself. Just start with baby step. How about 15 minutes this week? 15 minutes आप काम करोगे, फिर next week you can improve it by 20 minutes. But the thing is, अगर आप एक महीना you can like start working on yourself 15 to 30 minutes, then you will feel that it is so addicting because you will get more and more aligned with your soul purpose. So not having enough time is not a good enough excuse, because this is something that actually requires a little bit of our more intentional time. So we can always manage our time when it comes to priorities. Yes, we have to prioritize. Yes, it's just about realizing that it is important enough to excel in our life. Ma'am, few questions have come in the chat box. There are two more students who are wanting to ask. One is Saurabh Verma. Can you please come forward with your question? Saurabh, are you there? And Vikas. Okay. So the next one is Vikas, who's wanting to ask. Vikas? Good afternoon, ma'am. Hi, good afternoon. Ma'am, I just want to know, can you suggest some good tips for self-motivation? Self-motivation. How can you manage I think that? the number one tip is reflection in the mirror. What do you see when you look at yourself in the mirror? I'm a great personality, or I just need to improve that? No, see, I think it's very important for you to have a very clear vision of yourself. What is it that you truly want in your life? What is it that you want in your life? How is it that you want to be probably 1 to 2 years from now? Okay. And now if you look at yourself in the mirror, are you like 100% satisfied with the person that you are today? And if not, then where is it that you can improve on? Because see, motivation is something that can last very, it will last only a few seconds if it's coming from an external factor. So our biggest motivator has to be the inner self, the person in the mirror. So you have to have a very clear vision, firstly, of where is it that you want to be, very, very specifically. What is it that you want your life to look like? How is it that you want to be as a person? And then understand yourself where you are currently. तो वो क्या होगा, यहाँ पे मैं अभी हूँ लेकिन मुझे ऐसा बनना है. जब मेरे पास ये बहुत clear traits हैं, then I will start working on the discrepancy. How do I bridge the gap? How do I become a better performer every day by 1%? And I think the biggest self-improvement tip that I can give you is start owning your morning. जब हम सुबह उठते हैं, उठते ही जो 30 minutes होते हैं, रात को सोने से पहले जो हमारे 30 minutes होते हैं, our brain is maximum open. So everything that you feed your brain, it actually goes to your subconscious level. Okay. So अब हम सुबह उठते क्या करते हैं, तुरंत अपना फोन देखेंगे, and that's how we also sleep, right? अगर फोन नहीं देखते तो क्या होता है, हमारा सेम थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है जो हमारा पिछले दिन का था, चाहे वो नेगेटिविटी है, चाहे वो सेल्फ डाउट है, whatever it is. So make a habit of actually use that 30 minutes. It could be
उठते you're using your gratitude list आप practice कर रहे हो, आप कोई अपने affirmations use कर रहे हो, आप कोई ऐसा podcast सुन रहे हो जो आपको बहुत ज्यादा inspire करता है, तो the day you start owning those 30 minutes in the morning, you will see a change throughout the day. उसके अलावा जो लास्ट के 3 स्किल्स के बारे में हमने बात करी थी, दैट इज माइंडफुलनेस, कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स एंड योर सेल्फ टॉक. Just use these things and you will see a drastic change in yourself. Regarding कर रहे हैं, हो गई. So there's another student, Harshita, who wants to ask. Thank you, ma'am. Welcome. Harshita from BCA first semester. Harshita, are you there? So, yeah, Harshita, please. Ma'am, Saurabh is here. Okay, Saurav, you can come forward. Ma'am, sometimes we know what we have to do, what is right for us. We know that what is right for us, but we still don't act on it. Like we procrastinate continuously. So, what we can do to... See, for example, do you want to give me an example for it so that I can work you with it? What is one thing that you want to do and you keep when you keep procrastinating on it? Let's just work on it. Like they want to study but they don't study. Yeah, exactly, ma'am. Totally. Okay, ठीक है. So how about okay, for example, I have my exam about after 2 days, okay? And I have to study, but I am doing everything else except studying, ठीक है? So now let's just see, अभी हम यहाँ बैठे हैं और हम देखते हैं कि अब मैं आज बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ, जो मैं भी कर रहा हूँ मैं यही करता रहूंगा और मैं आज बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ, तो कल के लिए what will be my thought process? मेरे पे बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, right? So we have to actually think of the worst case scenario, ठीक है? If we keep procrastinating the way we are, we have to see a very clear picture of what is happening. If I procrastinate for another 5 hours, 6 hours and spend my time either binge watching or like chilling with my friends, what is happening? Am I getting better? I'm not getting better, right? And I have a very clear choice that I'm making right now. Now, is it getting me closer to my aim? See, that's how you have to talk to yourself. आपकी जो self talk है वो आपका procrastination break करने का number 1 rule है. It is the number 1 way. Procrastination हम कब करते हैं कि नहीं यार अभी नहीं तब कर लूंगा, अभी नहीं तब कर लूंगा. Just tell yourself, ठीक है, how about I do this for half an hour right now and उसके बाद मैं फिर ये एक शो का ये एपिसोड देख लूँ, ठीक है? You have to trick yourself into doing it ना. So that will only happen when you know कि ये टास्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक और जो सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, मान लो कि किसी ने जिम ज्वाइन करना है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है? या किसी ने वेट लॉस करना है, उनको पता है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वही होता है वो हर दिन सुबह उठ के वो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करके वो कल कर लेंगे. तो उसके लिए सिंपल, लेट्स टेक बेबी स्टेप. कल आप सुबह सिर्फ 6 बजे उठ के आप अपने जूते अपने अलमारी से बाहर निकालो. सिर्फ आपका कल का ये टास्क है. उठो, जूते आप अपनी अलमारी से बाहर निकालो. परसों उठो, जूते सिर्फ पहनो, ठीक है, 5 मिनट और फिर सो जाओ. डन. फिर उसके अगले दिन जूते पहनो, उठो और जाके थोड़ा सा अपने घर के बाहर चले जाओ. टेक बेबी स्टेप्स. व्हाट विल हैपन इज, अगर आप एक्चुअली में ये चीजें करने लग जाओगे, by second day, I'm sure even by first day you will get out of your house, but by second or the third day you will start working on it. So use your self-talk to break your procrastination with the way that, ठीक है, अभी मैं ऐसी laze around करता हूँ, but कल क्या होगा? I will have to like probably work even more harder और फिर मैं पैनिक में चला जाऊंगा, जैसे मेरे साथ पहले कितनी बार हुआ है. So how about I just study? How about I do this right now for just 1 hour? Give yourself that small technique. या आप पोमोडोरा टेक्निक यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप किसी भी टास्क को 30 मिनट्स कर रहे हैं, जिसमें आप 25 मिनट करते हो, 5 मिनट की ब्रेक ले रहे हो, फिर 25 मिनट कर रहे हो, फिर 5 मिनट की ब्रेक ले रहे हो. ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए यूज होता है. तो आप अपने आप को ऐसे सेल्फ टॉक के थ्रू, ऐसी स्मॉल स्ट्रैटेजीज के थ्रू आप काम करने के लिए बाय इन कर सकते हो. मैम, पर वो मोटिवेशन वेयर ऑफ हो जाता है कुछ दिनों में. जैसे 2 दिन चला, अच्छा हुआ, 3 दिन 4 दिन, फिर उसके बाद फिर वो मोटिवेशन वेयर ऑफ हो जाता है काफी कुछ दिनों के बाद. ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट किया था आज? यस मैम. कल डिनर किया था? यस मैम. तो फिर क्यों किया आज ब्रेकफास्ट? खाना तो खाया था ना आपने कल. मैम वो तो मैम प्रेशर फील हो रहा है ना कि जैसे मैम डिनर नहीं किया, मैंने भूख लग गई. अब जैसे कोई काम है, जैसे मैम ने असाइनमेंट दिया कंप्लीट करने के लिए, तो वो मैंने किया, आज किया 4-10 पेज मैंने आज किए, फिर कल किया, फिर इस तरीके से करता गया.
फिर वो मैम एक प्रेशर खत्म हो जाता है। जैसे मैम ने बोला कि हाँ आपको 30 तारीख को सबमिट करना है, ठीक है। आप अब ये है कि मेरे आज 15 नवंबर है और मैं सोच रहा हूँ कि चलो अभी 15 दिन है, हो जाएगा। तो वो चीज मैम कैसे उसको वो डिसिप्लिन सो में वेरी कैसे करें? Now, प्रैक्टिकल मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, बहुत ही जी प्रैक्टिकल वे में अप्रोच करो. इफ यू आर गेटिंग 10 days टू सबमिट योर असाइनमेंट, देन सेट योर टारगेट कि आज मैं, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड एज यू से कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खेलने का बहुत मन करता है, तो दिस कैन नॉट बी रूल्ड आउट. सो सेट योर टारगेट कि आज इस असाइनमेंट, वट एवर इज असाइनमेंट, उसका मैं, उसमें अगर 10 पोर्शंस हैं तो आई एम गोइंग टू कवर ओनली 2 पोर्शंस. And once I finish those 2 portions, I'm going to play or whatever you like. I'm going to do that. So set a target for yourself. और अगर 10 दिन का टाइम मिला है तो 9th day आपका खत्म होना चाहिए. तो वो टारगेट आप सेट करके चलो. ये मत सोचो कि नहीं आज का हम ये पोर्शन अब हम कल कर लेंगे, लेकिन आप कल भी कर सकते हो. then you will have 4 chapters or 4 issues to be handled. Ma'am, that's very well that you've put it up. And with this, I will just add one performance psychology kit. Okay. अब उसमें क्या होता है? Having a very clear expectation from yourself. For example, I am a very high performer on my last day. ठीक है? That is how I've always showed up. तो अगर हमें 15 दिन प्रेजेंटेशन के लिए कुछ मिलते हैं, तो मैं कभी भी पहले के 13 days में नहीं करती हूँ. That is how I am. And my last के 2 days, I go all out, and that is my pattern, and that's how I've always been. ठीक है? So I am always somebody who will do the maximum on the last 2 days. But do I procrastinate on the first 13 days? No. That will come from your self-awareness. Understand your patterns. ठीक है? जब भी आपको assignment मिलती है, तो अगर आप starting में नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप अगर last में करते हो और आप procrastinate कर रहे हो, sit with yourself that is that helpful for you? Is that helping you to deliver your presentation optimally? नहीं है तो अगर आपको 10 दिन मिल रहे हैं, तो अगर आप 5 दिन में वो लास्ट 5 दिन में कर लोगे तो क्या ठीक रहेगा? आप उतने में केपेबल कर सकते हो ना. तो अपने आप को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने साथ सेट करो. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में चलो ये बहुत अच्छा लगता है, अगर हम फर्स्ट डे से करने लग जाएं उसकी जैसी तो कोई बात ही नहीं है. बट इफ दैट इज नॉट हाउ समथिंग वर्क्स फॉर यू, देन बी लाइक कि ठीक है, लास्ट 5 days आई विल डू इट. देन सेट टारगेट्स कि ठीक है, इसको मैं इस दिन में ये इतने पेजेस कर लूंगा, इस दिन में ये चीज कर लूंगा. ठीक है, तो वो स्पेसिफिक आप अपनी गोल सेटिंग कर सकते हो. सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट. But then don't use your self-talk to doubt yourself over and over again that what, I'm not getting better, मैं इतना time waste कर रहा हूँ. If that is how your self-talk is, then you want to review your actions right now. I can't hear you. I think you're on mute. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much. That was very Welcome, helpful. Your Saurabh. session was very helpful. Chalo, I'm really glad. I hope you're able to apply these. Yes, ma'am. I will try my best. Thank you. There is some Harshita who's wanting to ask, I think. Harshita, are you there? Yes, ma'am. Yeah, please. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Hi, good Harshita. afternoon. Ma'am, how does body language affect confidence? Oh, drastic. I mean, there is this research by Amy Cuddy, and she's an American psychologist, जिसने ये देखा था कि आप सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज, एक पावर वुमन पोज है जिसमें आप खड़े होते हैं, आपके जो पाँव हैं वो थोड़े से ब्रॉड हैं, आपके शोल्डर लेंथ पे हैं, आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपकी वेस्ट लाइन पे हैं. अगर आप ऐसे खड़े होते हैं तो इसको डोमिनेटिंग पोजीशन कहा जाता है. तो अगर आप इस पोजीशन में सिर्फ 5 मिनट दिन में एक बार आप खड़े होते हैं और अपने आप को शीशे में देखते हैं, या आप सिर्फ नॉर्मली भी खड़े होकर सिर्फ ब्रीदिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स पूरी बॉडी में वो जो सर्कुलेट करता है वो बहुत ज्यादा एम्पावरिंग होता है. सो योर बॉडी, द वे यूर एक्चुअली बिहेविंग, द वे यूर स्टैंडिंग इज सेंडिंग अ सिग्नल टू योर बॉडी ऑल द टाइम. तो बेसिकली जो हमारे सिग्नल्स हैं वो दोनों तरफ से जा रहे हैं. मेरा ब्रेन मेरी बॉडी को दे रहा है और मेरी बॉडी मेरे ब्रेन को दे रही है. तो अगर आप कभी भी देखेंगे फियर में हमारे जो शोल्डर हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्ड हो जाते हैं, हम बहुत ऐसे बंधी हुई पोजीशन में आ जाते हैं. तो अगर मुझे अपने फियर को, ठीक है, मेरे दिमाग में फियर है शायद से, ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से चेंज करना चाहती हूँ तो मैं अपनी बॉडी से अवेयर रहूंगी, मैं अपनी पोजीशन को ठीक करूंगी और उसके बाद मैं अपने आप को जो एफर्मेशंस बोलना चाहती हूँ, दैट आई एम पावरफुल, आई एम फियरलेस,
तो मैं ये चीज यूज कर सकती हूँ. सो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो थ्रू आउट ऑल द टाइम, सबसे पहले तो सामने वाले इंसान को हमारे एक बहुत क्लियर पिक्चर दे रहा है विदाउट अस इवन टॉकिंग. सो वो एक इंप्रेशन हमेशा जाता है. सेकेंडली, वो आपके दिमाग को कॉन्स्टेंटली एक पिक्चर दे रहा है कि हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी अच्छा नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी अच्छा है. सो आप अपनी सेल्फ टॉक के साथ साथ आप अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं अपने आप को बेटर महसूस कराने के लिए. तो वो जो पावर पोज है, और वो एक्चुअली रिसर्च में उन लोगों ने पावर पोज इंटरव्यू से पहले लोगों को करवाया था. उन्होंने ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें एक हिस्से को उन्होंने इंटरव्यू से पहले पावर पोज करवाया, ठीक है. एक ग्रुप को उन्होंने कुछ भी नहीं, वो नॉर्मली दे वेंट एंड दे गिव द इंटरव्यू. तो जिन लोगों ने पावर पोज किया था, दे वर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट. ओवर 78% जो बाकी का जो ग्रुप था वो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट थे. तो कहीं ना कहीं our body language plays a very important role in our brain and also मिस our प्रिया, confidence level. हर्षिता के क्वेश्चन से मुझे एक ये आइडिया आया कि आई थिंक इट विल बी गुड इफ यू कैन टेक अ सेशन ऑन द बॉडी लैंग्वेज आल्सो. Sure, ma'am, we can always discuss it. It's very important. You. No, Yeah, no. it's very. I am ma'am. troubling you, but maybe I am exploiting you. No, ma'am, the pleasure would be all mine, because I do understand you want students to actually work on these things, because very soon they will be out in the competitive world. और इस competitive world में हम कितने अच्छे हैं, हम कितने intelligent हैं, उससे ज्यादा important आता है how we come across. And all these interpersonal skills, all these soft skills really help us with that aspect. तो कहीं ना कहीं अब आजकल IQ का टाइम, सॉरी टू से, बट थोड़ा सा कम हो गया है. EQ का टाइम बहुत बढ़ गया है. EQ इज योर इमोशनल कोशेंट. तो इमोशनल कोशेंट का जो नंबर 1 फैक्टर आता है वो है आपका सेल्फ अवेयरनेस. फिर आपका आता है, फिर ये जो आपके सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके EQ के पार्ट रहते हैं. और अगर आप किसी भी टॉप कंपनी की आप HR पॉलिसी देखेंगे, तो उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है उनकी रिक्रूटमेंट में, वो IQ के साथ साथ दे वांट समबडी हु हैज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग EQ लेवल. So they will notice how well can you handle the pressure. They will notice आपके interpersonal skills कैसे हैं, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप कितने फोकस्ड हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है. बिकॉज आजकल की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एवरीबडी नीड्स शार्क्स एंड शार्क्स माइंडसेट. सो उसके लिए आप जितना ज्यादा अपनी ओवरऑल ग्रूमिंग पे काम करेंगे, उतना ज्यादा आपको परफॉर्मेंस एनहांस करने में मदद करेगा. थैंक यू सो मच मिस प्रिया, थैंक्स अ लॉट. और नेक्स्ट सेशन एक हम लोग का बॉडी लैंग्वेज पर भी होना चाहिए. डन मैम, एब्सोल्युटली मैम, वील डू इट ऑन दैट. Do let me know when it is convenient for you. Yes, ma'am. Thank you. Yeah, you have a very busy schedule and you're training the Indian team also, so I can understand. Yeah, last night also you were busy till 9 o'clock or something. Yes, ma'am. Chalta rehta, ma'am. But then again, that's what I will just last thing I would like to convey to all the students here. When you truly do something that you love, and when you find your purpose, that will also come from a lot of self-awareness, self-analysis work. तो जब आप फाइनली वो जॉब करेंगे ना, it will never feel like a job for you. So there are times when we have to work till 10:30, 11, and wake up at 5 o'clock in the morning, but it never really feels like a battle. It never really feels like कि यार ये why have to wake up in the morning. It's basically the excitement to wake up every day. तो वो तभी होता है जब हम एक्चुअली में अपनी आप को समझते हैं अच्छे से, एंड व्हेन वी डू समथिंग दैट वी ट्रूली वांट टू डू इन आवर लाइफ, दैट इज वेयर द रोल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एनालिसिस कम्स इन. सो I hope all of you find your true self and you work on it and keep on working on it, okay? And hope to see you all soon. Thank you, ma'am. Thank you, Miss Priya. Thanks a lot. Nice, wonderful session. Thank you, ma'am. Thank you. Regarding that,